آج ویو 360 میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان میں جنگی جرائم میں ملوث ہونے کی تحقیقات کرنے والی عدالت کے سیاسی عزائم ہیں۔ آپ کو ملوائیں گے نسلی منافرت اور پولیس کے ہاتھوں طاقت کے بے جا استعمال کے خلاف مظاہروں میں مسلمانوں کو متحرک کرنے والے عمر حکیم سے۔ اور پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے تک بہترین سمجھا جانے والا پراپرٹی کا کاروبار بھی موجودہ حالات میں مشکلات کا شکار۔ جو ایجنٹ ہے چھوٹا، جو نیا بگنر آتا ہے، جو وہ ڈیل نہیں کر پا رہا ہوتا اور ایسے حالات بن جاتے ہیں تو سب سے زیادہ افیکٹ وہی ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے مزید 2000 قیدیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا، جس کے بعد بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ صدر غنی نے کہا کہ گزشتہ ماہ عید الفطر کے موقع پر ہونے والی 3 روزہ جنگ بندی کے نتیجے میں ان کی حکومت نے کئی اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں 3000 طالبان قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ اس سال 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طے پانے والے امن معاہدے کے تحت افغان حکومت نے لگ بھگ 5000 طالبان قیدی، جبکہ طالبان نے افغان حکومت کے 1000 سے زائد قیدیوں کو رہا کرنا ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے بین الافغان مذاکرات جلد شروع کرنے کی غرض سے حال ہی میں کابل اور اسلام آباد میں رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ دوسری جانب طالبان نے امریکی جنرلز کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا جس میں بتایا گیا تھا کہ القاعدہ کی لیڈرشپ ابھی بھی افغانستان میں مقیم ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے جس کے تحت بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ان اہلکاروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو یہ تحقیقات کر رہے تھے کہ امریکی افواج نے افغانستان میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ دی ہیگ میں قائم عدالت کے محرکات سیاسی ہیں اور امریکہ کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی فوج اور انٹیلیجنس کے اہلکار گزشتہ 18 برسوں سے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں ملک میں مبینہ طور پر متاثرہ افراد کی طرف سے جنگی جرائم کی 700 شکایات سامنے آئی ہیں۔ بین الاقوامی عدالت یا ICC نے اس ضمن میں پہلی بار اپنے وکلاء کو امریکی افواج کے خلاف تحقیقات کا اختیار دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہم اس جعلی عدالت کی جانب سے اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے پر خاموش نہیں رہ سکتے، اور میں دنیا بھر میں اپنے بہت سے قریبی اتحادیوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اگلا نمبر آپ کا ہو سکتا ہے۔ جمعرات کے روز امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تحقیقاتی عمل میں ملوث ICC کے اہلکاروں پر اقتصادی اور سفری پابندیوں کا اعلان کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے عالمی عدالت کو نشانہ بنانے کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ اس حکم نامے کے سب سے تشویشناک پہلو یہ ہیں کہ آپ کے پاس ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے متعارف کرائے جانے والے ایسے نظام موجود ہیں جو عموماً امریکہ کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ICC کیا تحقیقات کر رہا ہے۔ مجوزہ تحقیقات خصوصاً ان جنگی جرائم اور سنگین جنگی جرائم کے بارے میں ہے جو افغانستان کی سرزمین پر تمام فریقوں کی جانب سے سرزد ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ امریکہ اس تنازع کے بہت سے فریقوں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں طالبان، افغان حکومت اور اس کے ادارے بھی شامل ہیں، لہٰذا ٹرمپ انتظامیہ صرف ایک فریق کے لیے استثناء حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سیکرٹری دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ امریکہ کبھی اس آئین کا فریق نہیں بنا جس کے تحت عالمی عدالت تشکیل پائی، اور اس نے اپنے اہلکاروں پر عدالت کے اختیار کو کبھی قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم اور یہ انتظامیہ ایسے امریکی شہریوں کی ناجائز تفتیش کی اجازت نہیں دے گی جنہوں نے ہمارے ملک کی خدمت کی ہے۔ اس کی بجائے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جانب سے مبینہ بد انتظامی کے بارے میں معلومات کو امریکی حکام کے حوالے کیا جائے تاکہ ہم مناسب کارروائی کر سکیں، جیسا کہ ہم ماضی میں مستقل طور پر کرتے رہے ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے قانون ساز ICC کی طرف سے امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کی تحقیقات کے حوالے سے زبانی طور پر مخالفت کر چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے عدالت کے اہلکاروں پر پابندیاں لگانے پر صدر ٹرمپ کی تعریف کی ہے۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ میں نسلی منافرت اور امتیاز کے خلاف ہونے والے احتجاج کی۔ امریکی قانون سازوں نے اس ہفتے جارج فلائیڈ کی زندگی کو یاد کرنے کے لیے منعقد کی گئی مختلف میموریل سروسز میں شرکت کی۔ فلائیڈ کی موت کے بعد ہونے والے مسلسل مظاہروں کی وجہ سے امریکی کانگریس اس دباؤ میں ہے کہ وہ امریکہ میں پولیس کے نظام میں نسلی امتیاز کے مسئلے کو حل کرے۔
کیا اس متنازع معاملے پر ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جماعتوں کے ارکان کوئی مشترکہ حل تلاش کر سکیں گے؟ جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جارج فلوئڈ کو ہیوسٹن میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے جنازے پر قانون سازوں کا کہنا تھا کہ اس کی موت پر ملک بھر میں ہونے والے مظاہرے تبدیلی کا ایک موڑ ہیں۔ جارج فلوئڈ نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ وہ تبدیلی لے کر آیا تھا۔ جارج کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب میں امریکہ میں قانون کے نفاذ میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ پولیس کو ایک جنگجو بننے سے پیچھے ہٹنا ہے، شہری آزادیوں اور حقوق سے انکاری نہیں ہونا، اور اسے ایک ایسے سرپرست ادارے میں تبدیل کرنا ہے جس کی توجہ عوام الناس کے تحفظ پر ہو۔ پولیس اصلاحات پر غور کرنے والے قانون سازوں کے سامنے گواہی دینے کے بعد جارج کے بھائی واشنگٹن میں ایک مارچ میں شریک ہوئے۔ یہ مسودہ قانون کامیابی سے پولیس کو جواب دہ بنانے میں مرکزی حکومت کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اس سے جبراً سانس لینے میں دشواری پیدا کرنے پر پابندی ہوگی، اس سے کسی کو نسلی اور مذہبی بنیادوں پر جانچنا ختم ہوگا اور مقامی پولیس سے ہٹ کر عدالتی کارروائی کرنے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ڈیموکریٹ اراکین کی طرف سے پیش کردہ تجاویز مظاہرین کی جانب سے پولیس کا بجٹ ختم کرنے سے متعلق ہیں، تاہم بہت سے قانون ساز قانون کے نفاذ کے لیے دی جانے والی فنڈنگ کو دیگر ترجیحات کی جانب موڑنا چاہتے ہیں۔ اس پالیسی کے ایک حامی سابق نائب صدر جو بائیڈن ہیں، جو اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ہیں۔ I support investing in communities. میں کمیونٹیز پر سرمایہ کاری کی حامی ہوں تاکہ وہ زیادہ صحت مند ہوں اور یوں زیادہ محفوظ۔ فی الوقت ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے بہت سے شہروں کا 1/3 بجٹ پولیس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ On policing. وائٹ ہاؤس پہلے ہی ڈیموکریٹس کی پیش کردہ ان تجاویز کو مسترد کر چکا ہے جس میں دیوانی مقدمات میں پولیس کو ملنے والے اختیارات کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ریپبلکن اراکین کی اکثریت والی امریکی سینٹ میں واحد سیاہ فام ریپبلکن سینیٹر بھی تجاویز مرتب کر رہے ہیں اور انہیں توقع ہے کہ ان پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ ایوان کے ہمارے اور وائٹ ہاؤس کے مسودہ قانون میں چند باتیں مشترک ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کانگریس کی عمارت بھی مختلف نظر آئے، کیونکہ یہاں امریکہ کی خانہ جنگی ہارنے اور غلام رکھنے والے جرنیلوں اور لیڈروں کی یاد میں نصب مجسموں کو ہٹانے کے مطالبات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ وہ امریکہ کے خلاف غداری کے مرتکب ہوئے اور ان کے مجسمے ابھی تک یہاں ہیں کیونکہ ریاستوں نے انہیں یہاں رکھا۔ بدھ کے روز سر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں اعادہ کیا کہ وہ ان چھاؤنیوں کے نام تبدیل نہیں کریں گے جو کنفیڈریٹ فوجی شخصیات کے ناموں پر رکھے گئے۔ وائٹ ہاؤس بھی پولیس کے نظام میں تبدیلی پر اپنی سفارشات مرتب کر رہا ہے جو قانون سازوں کی تجاویز سے الگ ہیں۔ کیتھرین جپسم کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ امریکہ میں ہونے والے مظاہروں سے ریلیٹڈ مسلسل اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر، فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/voa اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ جارج فلوئڈ کی گردن پر گھٹنا رکھنے والے سفید فام پولیس اہلکار پر فرد جرم عائد ہونے کے باوجود امریکہ بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جو امریکی شہر لاس اینجلس کے شہریوں کو 1992 کے ان ہنگاموں کی یاد دلاتا ہے جو ایک افریقن امریکن راڈنی کنگ کا پرتشدد قتل کرنے میں ملوث 4 پولیس اہلکاروں کے باعزت بری ہونے کے بعد شروع ہوئے تھے۔ امریکہ میں نسلی تعلقات کے بارے میں مختلف عقائد رکھنے والے سیاہ فام مذہبی رہنما کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریاست کیلیفورنیا میں بطور پاسٹر کام کرنے سے پہلے سٹیو ادارکوا گانا میں رہتے تھے۔ ٹی وی دیکھ کر انہوں نے امریکہ کا تصور قائم کر رکھا تھا۔ خوبصورت سڑکیں، خوبصورت لوگ۔ میں نے امریکہ آنے سے پہلے کبھی نسلی تعصب کا سامنا نہیں کیا، کیونکہ میں ایک افریقی ملک سے ہجرت کر رہا تھا جہاں سبھی سیاہ فام تھے۔ لیکن پھر اس تصور کی جگہ ان حقیقی تجربات نے لے لی جن کا سامنا انہیں 30 سال قبل امریکہ آ کر آباد ہونے کے بعد ہوا۔
लोग आपको अजीब तरह से देखते हैं, अजीब अंदाज में बात करते हैं, खुसूसन अगर आपका लहजा गैर मुल्की हो। फिर ना तो आपकी तालीम या पस मंजर और ना ही समाजी हैसियत से कोई फर्क पड़ता है, लोग फौरन आपको कमतर बना देते हैं। स्टीव को पुलिस की जानिब से मस्बत और मनफी दोनों तरह के तजुर्बात रहे हैं। 1992 में जब लॉस एंजलिस में हंगामे हुए तो वो यहाँ मौजूद थे। उन्हें उस वक्त की निस्बत अब कुछ तब्दीलियाँ नजर आती हैं। अब वो कम्युनिटी पुलिस मॉडल की तरफ चले गए हैं। युगांडा से अमेरिका आबाद होने वाली पादरी जोय मगाला भी 1992 के लॉस एंजलिस हंगामों में यही मौजूद थीं। ज्यादातर लोग समाजी तौर पर काबिल कबूल रवैये सीख रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत नस्ली तासुब है। मेरे 3 बेटे हैं, जब वो कुत्ते को वॉक कराने बाहर जाते हैं तो मैं ये सोचकर बहुत खौफजदा हो जाती हूँ कि वो सियाफाम हैं, कोई उन्हें गिरफ्तार कर सकता है या कुछ बुरा हो सकता है। नस्ली मुनाफरत से निमटना ज़रूरी है, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक तमाम इंसानों को मसावी न समझा जाए। मुजाहरे मुकद्दस हैं, जब नाइंसाफ़ी हो तो ये बिल्कुल ठीक अमल है। लॉस एंजलिस से ही ताल्लुक़ रखने वाली पास्टर नजूमा कहती हैं कि ये मुल्क गिर मुजाहिरे जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर रद्द अमल से कहीं बढ़कर हैं। ये वाक़या पुराने वाक़यात की याद दिलाता है। आप मुसलसल लोगों की मारपीट करके ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी नुक्ते पर वो भी लड़ेंगे। पादरी स्टीव चाहते हैं कि पुलिस महकमे के अंदर से तब्दीली शुरू हो, जिसमें पुलिस की तैनाती के तरीक़ाकार पर गौर करते हुए नस्ली मुनाफरत और पुलिस की सफ़ाकी का जायजा लिया जाए। पुलिस एहलकार को भर्ती करने से पहले उसके पस मंजर में झांक कर उसके सकाफती रुझान को परखना चाहिए। उन्हें थोड़ा ज्यादा जानना चाहिए कि वो अमेरिका में रंगो नस्ल के बारे में क्या सोच रखते हैं। पादरी जोय मगाला समझती हैं कि तब्दीली इंसान के अंदर से शुरू होती है। हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या हमारी जिंदगियों में किसी भी तरह का नस्ली तासुब या इम्तियाजी रवैया मौजूद है, जैसे मोटापे या जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद के खिलाफ। हम सब इंसान हैं और हमें उन जैसे सब अफराद के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ एहतजाज में मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत से इन मजहबी रहनुमाओं का हौसला बुलंद हुआ है। जॉय मगाला समझती हैं कि इस साल सदारती इंतखाबात भी तब्दीली ला सकते हैं। एलिज़ाबेथ ली के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। नस्ल परस्ती और पुलिस के हाथों ताकत के बेजा इस्तेमाल पर मुजाहिरे सियाफाम लोगों के हुकूक के हवाले से जाने जा रहे हैं, मगर इनमें बहुत सी दूसरी अक़लियतें, दूसरे मज़ाहिब और रंगत के लोगों की आवाज़ भी शामिल है। इन मुजाहिरों में शरीक मुसलमानों को यकजा करने और उन्हें मुतहर्रिक करने में लॉस एंजलिस की मुसलमान कम्यूनिटी के लीडर और ब्लैक लाइव्स मैटर के कम्यूनिटी पार्टनर उमर हकीम डे ने इन मुजाहिरों में शरीक मुसलमानों के मौक़िफ़ के हवाले से सवाशा खान से तफसीली बातचीत की। What are the sentiments of the Muslims? इन मुजाहिरों में शामिल मुसलमानों के क्या जज्बात हैं और वो क्या मुतालबा कर रहे हैं? What are they demanding? We're asking the Muslim community, Muslim organizations, Muslim centers. हम मुसलमान कम्युनिटी की मुसलमान तंजीमों और मराकज़ से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपने निसाब और गुफ्तगू को सियाफाम और दीगर नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ तासुब और पुलिस की बर्बरियत के ख़ात्मे के लिए वक्फ़ करें। लिहाजा हम मुसलमान बिरादरी से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी कम्युनिटीज़ में भी नस्ली तासुब से निमटें। हमें मुसलमान बिरादरी की तरफ से बहुत पजीराई मिल रही है, क्योंकि हम सबको यकीन है और जानते हैं कि हम आदम की औलाद हैं। Because all of us, we believe and know that we are the sons and daughter of Adam. What do you say to folks? आप लोगों को क्या कहेंगे? मेरा मतलब है तशद्दुद, लूट मार, गम, गुस्से के साथ, और फिर ये भी कि आपकी आवाज़ सुनी जाए। आपकी राय में ये चीज़ें कहाँ लेकर जाती हैं? जब आप इन हालात में होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काबू नहीं होती। तो ज़ाती तौर पर मैं पुरअमन एहतजाज के साथ हूँ। आप किसी इमारत या मसनूआत को इंसान की ज़िंदगी के बराबर नहीं समझ सकते। अवाम के हकूक़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। बुनियादी मसला दीगर रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ ताकत का बेजा इस्तेमाल है। In communities of color. Are there any fringe groups that are? क्या ऐसे कोई ग्रोह हैं जो ये काम कर रहे हैं जो लूट मार और तशद्दुद की वजह है? There are people there to. कुछ ऐसे अनासिर हैं जो लोगों को मुश्तिल करने के लिए मौजूद होते हैं। हम इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ लोगों को उनके हकूक दिलाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे वाक़यात हमारी बातचीत से तवज्जो हटा देते हैं। Black Lives Matter is leading. Black Lives Matter इन मुजाहिरों की क़यादत कर रहे हैं। अगर आप मुसलमानों,
अफ्रीकन अमेरिकन या वो मुसलमान जो इन मुजाहिरों में हिस्सा ले रहे हैं उनके मकासद पर नज़र डालें तो इनमें एक जैसा क्या है और क्या मुख्तलिफ है? The Muslim goals are aligned with Black Lives Matter goals. जब बात पुलिस की सफाकी की आती है तो मुसलमान और ब्लैक लाइव्स मैटर के अहदाफ एक ही हैं, तो हम दोनों का एक ही काम और मकसद है। ब्लैक लाइव्स मैटर सिर्फ उन तंजीमों में से एक है जिसका नाम एक ब्रांड है जिस पर सबकी नज़र है, लेकिन एक से ज़्यादा तंजीमें काम कर रही हैं और हम सब पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ लड़ रहे हैं। Police brutality. When you go into negotiations or when you put जब आप मुज़ाकरात में जाते हैं या अपने मुतालबात कलमबंद करते हैं तो वो क्या नुकात हैं जो आप लिखते हैं कि ये तब्दील होना चाहिए? We are asking LAPD हम LAPD और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सियाफाम अमरीकियों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, लोगों के हकूक़ को यकीनी बनाएं और किसी को रोकते वक्त वही हिकमत अमली इख्तियार करें जो आप किसी सफ़ेद फाम गाड़ी वाले को रोकते हुए अपनाते हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि वो इस मुल्क में नस्ल परस्ती की तारीख को समझें और ये कि ये किसी तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों में घुसाई है। अब याद रखें कि बेशतर पुलिस एहलकार असूल पसंद हैं कि जो कुछ अफसरान बेजा ताकत का इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें रोकना चाहते हैं ताकि ऊपर से नीचे तक सभी असूलों का ख्याल रखें। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत ना हो तो एहतजाज नहीं होगा, अगर बरसों से जारी नस्ली इम्तियाज ना हो तो कोई एहतजाज नहीं होगा। There will not be no protest for continued years of racism. There will not be no protest if it was not police brutality. Well, thank you so much for your time today. टिड्डी दल के हमले से बलूचिस्तान के 33 अजला मुतासर हुए हैं। माहिरीन को खदशा है कि अगर हुकाम ने फौरी तौर पर टिड्डी दल पर काबू नहीं पाया तो सूबे के अवाम को आइंदा साल ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। मुतासर होने वाले काश्तकार हुकूमत से क्या चाहते हैं, तफसील जानते हैं बलूचिस्तान के ज़िले ज़ियारत से मुर्तज़ा ज़ाहरी की इस रिपोर्ट में। उजड़े दरख्तों के ये मनाजिर खुश्क साली के नहीं हैं। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में पानी भी वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। इस बाग का ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि टिड्डी दल के झुंड ने किया है। बाग के मालिक क़यामुद्दीन की नज़रों के सामने टिड्डी दल पहले पत्तों और फिर सेबों को चट कर रहे हैं, मगर वो खुद बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। टिड्डी दल की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए इनके पास सिर्फ एक लकड़ी है जो नाकाफ़ी है। इस बार हर शख्स का बाग भरा हुआ है, लेकिन इस साल फिर हमारे ऊपर टिड्डी दल का अजाब है। पिछले साल अगर मुझे 5 लाख का फायदा हुआ था तो इस साल 1 लाख रुपए मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क भर में टिड्डी से 46 अजला मुतासिर हैं, जिनमें 33 बलूचिस्तान के हैं। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक और ज़राअत के मुताबिक टिड्डी दल का एक झुंड एक दिन में 35,000 अफराद का खुराक खा जाता है। इदारे ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर टिड्डी दल ने रबी और खरीफ की 25% फसलों को नुकसान पहुँचाया तो मजमूई तौर पर 1,000 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है, जिससे ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो सकती है। टिड्डी दल का जो खुराक है वो बेसिकली या तो हमारी खुराक है या हमारे जानवरों की जो लाइफ स्टॉक की है उसकी खुराक है। अगर हमारी दूसरी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी जो एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक से हम पूरी करते हैं इस टिड्डी दल की वजह से, तो उसका असर भी हमारे बुनियादी खुराक पे होगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए महकमा ज़राअत के ज़ेली इदारे प्लांट प्रोटेक्शन के डायरेक्टर आरिफ शाह का कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए 10 दिनों के अंदर जहर और स्प्रे मशीनों की खरीदारी की हिदायत की है। जो भी ज़िम्मेदार हमारे तक पहुँचे हुए हैं, हमारी टीमें जो है तकरीबन 90% के करीब हम टाइमली ही पहुँचे हुए, जिसकी वजह से वो नुकसानात से बच गए। क्योंकि ईरान से भी हमें ख़तरा है। एक जहाज़ हमारे पास परमानेंट क्वेटा में होगा। इन केस अगर जो है स्वार्म या जो लोकस की जो झुंड है वो ज़्यादा तादाद में आता है तो हमारे पास और भी जो जहाज़ है, हेली है, तो किसी वक्त भी हमारी मदद के लिए आ सकते हैं। बलूचिस्तान में गुज़श्ता साल भी मार्च में गवादर और चागी के इलाकों में टिड्डी दल ने हमला किया था, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान के 80% इलाकों में टिड्डी दल ने हमला कर रखा है और इसके खात्मे के लिए स्प्रे का सिलसिला भी जारी है। ताहम माहिरीन ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि मस्कत से ईरान और ईरान से बलूचिस्तान में टिड्डी दल का एक और रेला दाखिल होने वाला है। अगर इस सिलसिले में इक़दामात नहीं किए गए तो टिड्डी दल बलूचिस्तान की ज़राअत के लिए तबाही का एक और पेश ख़ैमा साबित हो सकता है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका,
ज़ियारत बलूचिस्तान। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों से जायदाद की खरीदो फरोख्त मुनाफा बख्श कारोबार समझा जा रहा था, लेकिन मौजूदा माशी बहरान से ये मुस्तहकम सनद भी मुश्किलात का शिकार है। प्रॉपर्टी की आसमान को छूती कीमतें गिरी तो नहीं, अलबत्ता सरमायाकारों ने खरीदो फरोख्त में पैसा लगाने से हाथ रोक लिए हैं। कोविड-19 के दिनों में ऑनलाइन और रिवायती तरीके से रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले किस तरह से मुतासर हो रहे हैं, लाहौर से जानते हैं समन खान की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने बज़ाहिर प्रॉपर्टी की कीमतों पर तो कोई असर मुरतब नहीं किया, लेकिन जायदाद के लेन देन का कारोबार इन दिनों सुस्त रवि का शिकार है। सनम खान लाहौर में प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनकी टीम को किसी घर के लेन देन या किराए का मामला तय करवाए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि उनके साथ काम करने वाले सरमायादार भी फ़िलहाल किसी मंसूबे में पैसा नहीं लगा रहे। हमारा काम इन्वेस्टर पे चलता है, अगर इन्वेस्टर नहीं है ना तो हम लोग बिल्कुल बेकार हैं। बाकी देखें, रेंट जो घर हम रेंट आउट करते हैं उससे तो ऑफिस का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। ज़्यादातर तो यही है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे। हमने एक इन्वेस्टर पकड़ा, हमने 6 घर बनाए। जब ये कोरोना आया हमारे घर वैसे ही पड़े हैं, हमारा पैसा स्टक हो गया। लाहौर के तकरीबन हर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के दफातर हैं। कारोबार में मंदी का दौरानिया बढ़ने से ये खदशा बढ़ रहा है कि अक्सर डीलर्स ये काम जारी नहीं रख सकेंगे। सेटअप्स बड़े लग गए हैं, मुलाजिमों की तनख्वाहें निकालनी, फिर हमारे ऑपरेटर्स हैं जो कि ऐड करते हैं पोस्टिंग जिस तरह, फिर हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पेड भी हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ दिल को बड़ा करके, तो जो एजेंट है छोटा, जो नया बिगिनर आता है, जब वो डील नहीं कर पा रहा होता और ऐसे हालात बन जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट वही होता है। लेकिन प्रॉपर्टी के लेन देन को ऑनलाइन ले जाने वालों का कहना है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर मुश्किल वक्त को कुछ आसान बनाया जा सकता है। ज़मीन.com ने 2006 में पाकिस्तान में जायदाद का ऑनलाइन कारोबार मुतारिफ कराया। इन दिनों कंपनी स्काइप और जूम के जरिए डील्स कर रही है। पाकिस्तान में ये लोग मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर है ट्रस्ट का, कि मैं आपको मिले बगैर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। हमारी महीने में तकरीबन 500 फिजिकल मीटिंग्स होती थी, तो वो ज़ीरो हो गई, और वीडियो मीटिंग्स हमारी 15-20 होती थी, टीम्स नहीं करते थे, वो 400-500 पे चले गई। सो वन थिंग वाज गोइंग डाउन, द अदर थिंग वाज गोइंग अप, एंड उसको मॉनिटर करके फिर हमने सोचा, हमने देखा कि हमारी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम किधर है पाकिस्तान में। जो आपकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम मार्केट में चल रही है वो तकरीबन 20-30% तक वापस आ गई हुई है। पाकिस्तान में बहुत से सार्फिन अपनी पसंद की प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए कुछ अरसे से सोशल मीडिया का रुख भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दिनों में प्रॉपर्टी की ऑनलाइन सर्च में कमी के बाद अब सूरत हाल कुछ संभल रही है। 30%-40% तक ड्रॉप आया था। ये जब लॉकडाउन हुआ है, आई थिंक 15 मार्च को थोड़ा सा हुआ था, फिर 23 मार्च की छुट्टी थी, 24 मार्च को ज़्यादा हुआ था, बट अब वो हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है, और अब तकरीबन हम उन्हीं रेट्स पे आ गए हैं। कुछ ऐसे भी दिन आ रहे हैं जहाँ पे लोग उतनी ही सर्चिंग कर रहे हैं जितना पहले हो रही थी, मगर वो क्या ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आई थिंक टाइम के साथ पता चलेगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में अब तकरीबन 70% एस्टेट एजेंसीज ऑनलाइन मार्केट में कदम रख चुकी हैं, लेकिन 3D और आला क्वालिटी की वीडियो और तस्वीर के बावजूद सार्फिन मौका पर जाकर डील करने को तरजीह देते हैं। कोरोना वायरस के बायस प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी तो नहीं, बस जो कीमत जहां थी वो वहीं रुक गई है। अलबत्ता सरमायादार रुको और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दूसरी जानिब नई डील्स ना होने के बायस जायदाद के लेन देन से मुंसलिक अफराद को अपने माहाना अखराजात पूरा करने में दिक्कत पेश आ रही है, और यूं अमूमन मुनाफा बख्श समझा जाने वाला ये कारोबार भी इन दिनों गैर यकीनी का दौर देख रहा है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और इस वक्त जबकि गवर्नमेंट सख्त लॉकडाउन से हट के टारगेटेड लॉकडाउन की बात कर रही है, उन हालात में आप अपने आप को कैसे महफूज रख रहे हैं, हमें लिखिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।